So on a new day, we are going to start with one new chapter, very basic chapter. The name of the chapter is ledger. Now, just to start with this chapter, I would say you did the journal, right? Where you had where you just record all the transaction into the accounting form. Now, here also you'll be recording transactions only, but this is the second step of your accounting process. Journal के बाद में, yes, it's a second process, it's a second step. Now, why was there a need for us to make the ledger is that if you want to find out that what is the cash balance on a particular date, for example, or a particular month, or for a month how many transactions were there and what is the cash balance in the books of accounts. In journal, you need to add all the transactions like first day पे ये हुआ, second day पे ये हुआ, third day पे ये हुआ, ये and all, है ना? And you need to keep on having a track of all. You sit with the calci, take all the cash transaction, do all that plus minus and all, and then afterwards come to a conclusion that this is the answer, right? But when you prepare a ledger, here on a piece of paper, you write all the transactions of that particular account so that you have a summary. मतलब वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि what is the cash balance because just आपको add less करना है. You understand that? But in ledger, there are multiple pages you have to like keep on flipping and just take care of all the cash accounts which have been debited and credited. कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, then you have to add it up and then there's a high chance of you making a mistake in that. You might skip any entry. You might overlook it. But यहाँ पे खाली add करना है amounts को, खत्म हो जाएगा चीज. When I'll make the ledger ना, उसके बाद में I'll tell you what is the importance. As of now, let's start with a basic transaction का list, journalizing and then afterwards posting it in the ledger form. ठीक है? We'll take 4 to 5 transactions only. ठीक है? The very first one, I am starting the business, let's say on 1st of April 2018. Let's try latest, like 2024. Started business with cash, 10,000. On second day, purchase goods on credit, 5,000. Let's take cash only करा जाएगा. Explanation easy हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए. You purchase goods for cash 5,000. You sold the goods 8,000. Okay. Let's take these 3 transactions only. Try to understand how journal is very clear to us, right? How would we prepare the ledger and the further part? Correct, sir? If this is the only information that you have, okay, journalizing is very easy. So can you directly pass me out the journal entry and tell me what will be the answer for the journal? Cash to capital. Very first one is cash to capital. Very good. So I'll write date over here. I'm not making the format up. Proper format नहीं बना रहा मैं. वो टाइम पास नहीं कर रहे हैं हम लोग. यहाँ पे journal नहीं सीखने बैठे, ledger वाला part. तो I'll directly write over here cash account debit to capital account. And जो भी नरेशन है वो लिख लोगे आप सब. Purchases account to cash account. क्या बात है सर. सर पहला वाला 10,000 है ना. सर आपको मैं अगर कोई मिस्टेक कर दूं आपको मुझे बता देना है ना. $10,000 ना सर. Then we have sales का entry. What is that? Cash account. क्या बात है सर. 24 ना. क्या cash account debit sir, sorry. कोई problem? Okay. Now this was very easy. This was very basic. ये आपने पहले कर दिया है. पिछले 1 महीने से हम लोग यही कर रहे हैं ना. Now if I want to find out what is my cash balance, तो क्या करना पड़ेगा मालूम है आपको. कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, 10,000 लिखना पड़ेगा, फिर इसमें से 5,000 माइनस करना पड़ेगा, फिर 8,000 ऐड करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा 13,000. एम आई करेक्ट? क्या करना पड़ेगा मुझे इसको इसको इसको. नाउ इमेजिन दैट आई एम हैविंग 5 पेजेस ऑफ जर्नल. देयर आर मल्टीपल कैश ट्रांजैक्शन, देयर आर मल्टीपल क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड ऑल दैट. सो आपको हर एक पेज का कैश का ट्रांजैक्शन को अलग पेज पे लिखना पड़ेगा, राइट है. फिर ऐड करना पड़ेगा,
and then you'll get the answer that what is the cash balance. तो ऐसे ही करते करते हमारे लूका पैसियोली जिसने अकाउंट्स का ये 3 रूल्स और वो सब बनाया है, जिसने फॉर्म किया है, सो ये लोगों ने क्या बोला कि यार एनी विच वेज वी हैव टू राइट ऑल द अमाउंट्स एट वन प्लेस टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट. सो व्हाई नॉट टू लाइक सिस्टमैटिकली मेक एन डिफरेंट बुक ओनली फॉर दैट. इजी हो जाएगा ना सर. सो अभी उन्होंने क्या किया मालूम है? अच्छा, you know the format of the journal, right? The format of the journal is very basic. यहाँ पे पहले डेट आता है, यहाँ पे मैं क्रेडिट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं डेबिट लिखता हूँ, एंड आई हैव अ लेजर फोलियो. करेक्ट है. आज आपको मालूम पड़ेगा सर कि लेजर फोलियो का मतलब यूज क्या था. आज एक्चुअली मालूम पड़ेगा अपने को. ठीक है. नाउ व्हाट हैव दे डन, यू नो, ये जो जर्नल का फॉर्मेट है ना, इसी में थोड़ा चेंजेस कर दिया. यही जर्नल के फॉर्मेट में उन्होंने क्या कर दिया? चेंजेस कर दिया. नाउ व्हाट दे हैव डन ओवर हियर इज, बच्चे, इन्होंने एक तो कॉलम रखा ही है डेट का. ठीक है. और बीच में से लाइन बना देते हैं आप. एक तो डेट का कॉलम रखा ही है. ओके. बट यहाँ पे उन्होंने डेबिट्स एंड क्रेडिट्स को सेपरेट कर दिया. दिस इज द डेबिट कॉलम, दिस इज द क्रेडिट कॉलम, दिस इज द डेट कॉलम, एंड दिस इज द पर्टिकुलर्स. क्या मालूम है? इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ. This side is going to be your debit side and this side is going to be your credit side. करेक्ट है. वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. द वेरी फर्स्ट कॉलम ना, उन्होंने क्या नेम दे दिया उनको? डेट. पहला डेट का कॉलम बना दो सर. ठीक है. सो वॉट एवर इज डेबिटेड विल बी रिकॉर्डिंग ऑन दिस साइड, वॉट एवर इज क्रेडिटेड इज रिकॉर्डिंग ऑन दिस साइड. ठीक है. अब इसका यूज क्या है बताता हूँ मैं आपको. देन उन्होंने एक और कॉलम बनाया अमाउंट के लिए, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड ना. कितना अमाउंट है सर आपके पास में, वो तो बताओ मुझे, है ना. डेबिट क्रेडिट ठीक है. हाँ, तो ये डेबिट का अमाउंट हो जाएगा इस तरफ, एंड इस तरफ क्या हो जाएगा? क्रेडिट का अमाउंट. करेक्ट है. नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट टू फाइंड आउट कि ये जो मैंने जर्नल एंट्री पास किया है ना, वो कौन से पेज नंबर पे था. तो यहाँ पे जर्नल फोलियो लिखेंगे हम लोग. ये विल राइट व्हाट इन द लेजर. सॉरी, हाँ, जर्नल में लेजर. परफेक्ट. लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स टेक कि ये जो एंट्री है, आई एम जस्ट टेकिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं मैं. ये पेज नंबर 1 पे है ये वाला ट्रांजैक्शन, ये पेज नंबर 3 पे है ये वाला ट्रांजैक्शन, एंड ये पेज नंबर 7 पे है ये वाला ट्रांजैक्शन. अगेन आई एम जस्ट टेकिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन. तो यहां पे ये तो जर्नल का है ना, तो लेजर के अंदर मैं जब ये वो अकाउंट बनाऊंगा ना, तो यहां पे वो कौन से पेज नंबर पे है ना, वो लिखना पड़ेगा. दैट्स द बेसिक नीड. ठीक है. वी डोंट यूज इट बिकॉज अभी तो क्या हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, हम लोग कंप्यूटर के ऊपर ही सब कुछ कर लेते हैं. बट पहले के टाइम में ऐसा होता था. सही है. नाउ हाउ मेनी अकाउंट्स डू आई नीड टू प्रिपेयर. यहाँ पे इस पहले देख लो. पहले आप कैश अकाउंट बना दो. कैश अकाउंट. फिर आप कैपिटल अकाउंट बना दो. सेकेंड. थर्ड परचेस. फिर से कैश मत बना, बिकॉज कैश तो बना दिया है आपने. तो 3 अकाउंट्स. फिर कैश फिर सेल्स. देयर आर 4 अकाउंट दैट आई एम गोना प्रिपेयर. मतलब यहाँ पे जो फॉर्मेट बनाया है ना सर, आई एम गोना मेक दिस फॉर्मेट हाउ मेनी टाइम्स. अच्छा, ऐसे 4 बार बनाना. यस यस. बाप रे सर, थोड़ा सा ऐस होने वाला है आपके साथ में. गधा मुजरी करोगे आप सर. तो ऐसे अगर अगर 10 अकाउंट हुए तो आप बताओ मुझे कितने अकाउंट बनाओगे. 10. सही है. हाँ, सिर्फ कैश को रिपीट नहीं करना है या कोई भी अगर सी, अगर आपके पास कैपिटल बना हुआ है, आपके पास में परचेज बना हुआ है, तो हम लोग क्यों उसको अलग से फिर से बनाएंगे. हमारा मकसद यही है कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है वो उसी ट्रांजैक्शन वही अकाउंट में चला जाए. पक्का ना सर. चलो कट पेस्ट कर लेते सर. हाँ. सर मेरे पास में ऑप्शन है, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है. कुछ बनाना पड़ेगा सर. मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये चैप्टर. इसके मुझे ये वाला चैप्टर पसंद आता है ताकि मैं चिढ़ा सकूं. मेरा हो गया, तुम्हारा बाकी है. सर अगेन यहाँ पे आएगा डेट. दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड. यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स.
दोनों साइड में जर्नल खोलिए लिखना है। या बिकॉज कभी कभार आप डेबिट में अमाउंट लिखोगे, कभी कभार आप क्रेडिट में अमाउंट लिखोगे ना। पक्का? ओके, ये फॉर्मेट हो गया आपका, मतलब फॉर्मेट भी आपको समझ में आ गया। नाउ हाउ डू यू पास एन एंट्री, वो देखते हैं। सबसे पहला उसने क्या बोला है मुझे, कैश अकाउंट इज डेबिटेड, मतलब यू हैव टू राइट इन द कैश अकाउंट सो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएंगे, मीन्स विल बी राइटिंग इन दिस कॉलम और इन दिस प्लेस, बिकॉज कैश अकाउंट इज, बट लिखेंगे मालूम है क्या, टू कैपिटल। वेरी फर्स्ट थिंग, डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 24, हाँ, टू कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज। इसमें नरेशन नहीं होता है। नरेशन नहीं आता है इसमें। नरेशन आप कभी लिखते हो मालूम है, व्हेन यू फर्स्ट लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर पासिंग एन एंट्री in cash book, you used to write the narration because it was the first time you are passing an entry, right? But here entry हो चुकी है, now from entry you are just posting it in a separate account. Okay, so cash account debit to capital account. आपने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे गए एंड कैपिटल का लिखा, तो अभी इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड, सो आई विल गो टू द कैपिटल अकाउंट, आई विल मेक अ कैपिटल अकाउंट ओवर हियर and I will be going on the credit side, but I will be writing opposite nature वाला, opposite side पे जो है, that is what, cash account. इसमें क्या है, बाय कैश। Yeah, very good, buy cash 10,000. Now what is the need, मतलब what is the use कि हम लोग ये ऐसा क्यों लिखते हैं। Let's take an hypothetical situation कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स था, इसमें से कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स यू नो लाइक जल गया, चोरी हो गया, या बारिश में से लेके आ रहे थे, आपका अकाउंटेंट आया तो वो भीग गया, रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया, वट एवर द रीजन इज। तो अगर आपके पास सिर्फ कैश बुक भी है ना, इससे भी आप दूसरे ट्रांजेक्शन का एंट्री पास कर सकते हो। कैसे, कैश अकाउंट को तो ये तो पेज तुम्हारे पास सलामत है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा, मतलब कैश अकाउंट इज डेबिटेड, और क्या लिखा है, टू कैपिटल, तो एंट्री क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बना, नहीं समझा। So from journal to ledger तो बना ही सकते हो, but if in case you happen to lose some records, so from the ledger you can again prepare the journal, and आप accounting का जो books है उसको आप क्या कर सकते हो, yes। सर मैं आपको यही चीज है ना फिर से बताऊंगा इन द लास्ट चैप्टर, वी हैव अ सिंगल एंट्री चैप्टर, वहां पे आपको मैं फिर से रिलेट करूंगा एंड मैं फ्लैशबैक में आपको लेके जाऊंगा एंड बताऊंगा, देखो मैंने ये आपको चीज बोली थी कि यू कैन मेक द रिकॉर्ड्स, यू कैन कंप्लीट द रिकॉर्ड्स आउट ऑफ द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड दैट यू हैव राइट नाउ। नहीं समझा, पक्का? तो अगर ज्यादा होगा इसमें जर्नल में, अगर ज्यादा पॉइंट्स होंगे, जैसे डेबिट के 3 है तो उसमें वो कंपाउंड एंट्री हो गया सर, वो भी मैं बताऊंगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा मैं आपको, बड़ा गुड क्वेश्चन। एज ऑफ ना पहले ये खत्म करते हैं। नेक्स्ट वन, परचेज अकाउंट डेबिट। चलो मुझे बताइए, सबसे पहला मेरा टास्क होगा कि ओपन एन अकाउंट, सो ये परचेज अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, व्हेनेवर वी पास द जर्नल एंट्रीज ना, विल काउंट द नंबर ऑफ अकाउंट्स हैव टू प्रिपेयर, सब लाइन से बना के रख देंगे, फिर उसके बाद में एक साथ में सब पोस्टिंग करते थे, इट बिकम्स वेरी इजी। आप क्या करते हो मानो, मैं एक एक अकाउंट बनाते हो फिर उसका पोस्टिंग करते हो, दैट बिकम्स वेरी लेंदी आल्सो, एंड तो वो बात तो है ही सर। सेकंड चीज क्या होता है मानो, यू माइट स्किप एनी डेबिट और क्रेडिट, तो क्या करो, पहले काउंट द नंबर ऑफ अकाउंट यू नीड टू प्रिपेयर, देन प्रिपेयर द लाइंस एंड ऑल, सब कुछ। एक दो अकाउंट एक्स्ट्रा बन के तो फर्क नहीं पड़ता है ना, होगा नहीं हमारे पास में, बिकॉज़ विल बी काउंटिंग इट, बट ये बहुत इजी हो जाता है। चलो, तो कैश अकाउंट इज व्हाट, बीइंग डेबिटेड, सॉरी परचेज अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड। ऑपोजिट में क्या लिखा है, कैश टू कैश लिखा है। सो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पे जाना है मुझे, दिस इज द डेबिट साइड परचेज अकाउंट के, टू कैश। हाँ, और डेट क्या लिखूंगा सर मैं, जो भी डेट है, सेकंड। नाउ परचेज हो गया, नो कैश अकाउंट, हाँ, दिस टाइम कैश इज बीइंग credited, so I will go in the cash account on the credit side, बाय
बाय परचेज। हाँ, बट उसके ऑपोजिट में क्या लिखा है? परचेज, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय परचेज। नहीं समझा? समझे? इजी? यस। आप मुझे हेल्प करेंगे? कैश अकाउंट बीइंग डेबिटेड, तो उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे टू साइड। क्या बात है सर! एंड एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा सर आपको। अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे क्या स्टार्टिंग में क्या बोला मैंने सर आपको, है ना? और जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वो भी आपको मालूम पड़ा कि मैं क्यों वो सब जो शब्द इस्तेमाल किए थे, उपशब्द जो मैंने इस्तेमाल किए थे इस चैप्टर के लिए, है ना, वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता सर, मारेंगे पकड़े मेरे को तुम लोग। नाउ दिस इज डन, एवरीथिंग इज डन। अभी क्या करेंगे मालूम है सर हम लोग? नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द बैलेंस। मतलब क्या सर? इजी है ना, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, सो 18,000 माइनस 5,000 करेंगे, कितना बैलेंस मिलेगा मुझे? 3,000, सॉरी सर 13,000। तो इसका वो एक सिस्टम है, क्या करने का मालूम है? सबसे पहला टोटल ले लेने का, इसका टोटल आया 18,000, इसका टोटल आया 5,000। मालूम पड़ा 18 कैसे आया सर? इसका तो एक ही है भाई। सो नाउ जो कम साइड है ना, जहां पे लेसर साइड है, वहां पे हम लोग लिखेंगे कितना कम है, दैट इज 13,000। सो हियर आई मेक अ सर्कल एंड राइट 13,000 एंड दिस इज माय बैलेंस। बाय बैलेंस कैरी डाउन, मतलब ये जो अमाउंट है ना वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब इतना बैलेंस मेरे पास में लास्ट डे था ऑफ द मंथ और द ड्यूरेशन, एंड देन व्हेन आई स्टार्ट विद द न्यू ड्यूरेशन, तो आई एम हैविंग दिस मच बैलेंस। करेक्ट है? सो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये मंथ एंड ईयर एंड जो भी ड्यूरेशन है तो उसमें करते हैं। लेट्स टेक द मंथ एंड 30th of April 24 एंड आई टेक दिस 1st of May 24। ऑलवेज ऐसे ही होता है। एंड ये जो टोटल है ना, दोनों जगह पे 18,000 लिखने का, बिकॉज अकाउंट्स टैली होता है ना, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स हैज टू बी इक्वल। सो मैं बेसिकली क्या बोल सकता हूँ मालूम है? ये तो मैंने आपको लॉजिकली बताया क्या कैसे करते हैं। नाउ लेट्स डू इट एकेडमिकली कि क्या करना है। सबसे पहला टेक द टोटल ऑन बोथ द साइड्स, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये पहले ले लो, फर्स्ट स्टेप। जो भी हायर अमाउंट होगा दोनों जगह पे वही लिखो, जो भी लोअर साइड होगा वहां पे इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके अमाउंट लिखो, दैट इज गोइंग टू बी अ बैलेंस। कैरी दैट बैलेंस टू द नेक्स्ट ड्यूरेशन। सो फर्स्ट कैरी एंड देन व्हाट, तो सीडी पहले करोगे और फिर बीडी करोगे, मतलब सीडी उतर के बीडी। सर ये बात आपको जो समझ गए हो ना सर, है ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, और स्मर्क स्माइल आई कैन स्टिल सी ऑन योर फेस, है ना कि सर घर पे सीडी, घर पे बीड़ी नहीं सर, पहले सीडी उतर के नीचे जाओ, है ना, पान वाले के पास में, एंड देन फिर बीड़ी। तो सर फर्स्ट वन यू विल टेक द टोटल हायर अमाउंट बोथ द साइड, जहां पे कम वाला बैलेंस है वहां पे टेक द बैलेंस फर्स्ट सीडी, सीडी उतर के बीड़ी। सर अभी इसके अंदर करते कैपिटल के अंदर। नाउ हैव अ लुक एट दिस, आई एम सीइंग दैट ऑन द डेबिट साइड वी हैव अ जीरो, ऑन द क्रेडिट साइड वी हैव 10,000। सो मैं बिना टोटल वोटल करे मैं यहाँ पे डायरेक्टली 10,000 10,000 लिख रहा हूँ। जहाँ पे कम वाला है वहां पे मेक अ सर्कल, ठीक है, जिससे बैलेंस फिगर, दिस सर्कल अबे हाँ, ये बैलेंस फिगर होता है सर 10,000। यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। अच्छा उस तरफ हो गया, जिस तरफ एक्सेस है उस तरफ ही हम लोग बाय बैलेंस, जो बैलेंस बीडी सीडी लिखने का, सीडी विल कम ऑन दी लेसर अमाउंट या लेसर साइड, एंड ये अभी नीचे आने वाला है 1st of May 2024 बाय बैलेंस सीडी करके बीडी खत्म होगा। नाउ दिस बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। तो ये आप मुझे बताएंगे सर, अगर आपके पास में 4-5 परचेज होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव 10 15 20 था, और तो सबको नोट ले लेते हैं, है ना, फॉर द ड्यूरेशन लोग मालूम पड़ जाता। सो दोनों जगह पे मुझे 5,000 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई अमाउंट ही नहीं है, सो आई विल टेक द डिफरेंस, वो भी 5,000 ही आने वाला है।
नहीं जैसे बाय सर, बैलेंस। हाँ बाय बैलेंस सर, वो फ्लो में आ जाएगा आपके, एंड देन फिर वही नीचे। टू बैलेंस। एंड याद रखना कि सर ये जो टोटल है ना, ये टोटल एक लाइन में होना चाहिए, हाँ, एंड थोड़ा स्पेस छोड़ देने का यहाँ पे, सिस्टमैटिक लगता है। कैरी डाउन और फिर उसके नीचे बॉट डाउन, है ना? ओके, एक दो क्वेश्चन करोगे ना बेटा, वो आपको फ्लो में आ जाएगा ना, तो बहुत इजी लगेगा। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर वेरी वेरी वेरी, आई वुड से दिस इज गोइंग टू बी योर फेवरेट चैप्टर, बट यू वोंट लाइक टू डू इट बिकॉज बहुत लेंदी होता है, वो चीज टीडीएस काम हो जाता है यहाँ पे। जर्नल करना पड़ेगा ही मतलब। सी, if in the question they are asking to prepare the journal, prepare the journal। अगर अगर बनाना आपने रफ में बनाया या फिर आपने ओरली भी कर दो भी चलेगा। विल डू अ क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग ओरली करेंगे, वी आर नॉट मेकिंग द जर्नल फॉर दैट। उसके दो रीजन है। पहला रीजन वो है कि वो उसने पूछा नहीं है, राइट? और हाँ, और दूसरा रीजन कि हम लोग आलसी है, ठीक है? हम लोग तो नहीं, मैं तुम्हारी बात करता हूँ। तो यहाँ पे आएगा 8000, जो डेबिट बैलेंसेस होता है, एक होता है टीम डेबिट, एक होता है टीम क्रेडिट। ऑल दी एसेट्स, और अगर क्रेडिट ज्यादा है तो फिर वो इंसॉल्वेंट पर्सन है। हाँ वेरी गुड। बट यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि अगर टीम डेबिट एंड टीम क्रेडिट है, so the assets will always have a debit balance, expense and loss always has a debit balance, हाँ, drawings will always have a debit balance, capital will always have a credit balance, and income and gains will always have a credit balance, yes or no? ये हमने डिस्कस कर लिया है बहुत पहले। कैन आई से कैश इज एन असेट? यस। उसका बैलेंस वो कहाँ आ रहा है? बीडी, ऑन द डेबिट साइड, है ना? कैपिटल का बैलेंस वो कहाँ आ रहा है? बीडी वाला। परचेज इज काइंड ऑफ एन एक्सपेंस, हाँ, देखो बैलेंस कहाँ आ रहा है? बीडी वाला। सेल्स इज एन इनकम फॉर यू, उसका बैलेंस वो कहाँ आ रहा है? तो ये आएगा ही आएगा मतलब। या दिस इज बेसिक ना ब्रो। अगर ऐसा नहीं हो मतलब शायद गलत है। आपने कुछ मिस्टेक कर दिया होगा वहाँ पे, हाँ, बिकॉज बेसिक्स पे भी रॉन्ग नहीं जाएगा ना ब्रो। नहीं समझे आप? समझे। पक्की बात है ये ना सर। हम तो कर रहे हैं वैसे लेजर, बट साथ साथ में मैं आपको एक और टॉपिक बता ही देता हूँ। एक लेजर, एक जर्नल फॉर्मेट में मैंने एक टेबल बनाया है। 4 अकाउंट्स अफेक्ट हुए थे सर। वन वॉज कैश, कैपिटल परचेजेस। कैपिटल, परचेज एंड सेल। मैजिक दिखना सर। मैं क्या करता हूँ, मैं सबका बैलेंसेस लिखता हूँ। दिस इज द डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। दिस इज नॉट द जर्नल, बट जर्नल फॉर्मेट में मैंने बनाया है। कैन आई सी कैश अकाउंट के अंदर मुझे बैलेंस दिख रहा है ऑन द क्रेडिट साइड, यस। सॉरी ऑन द डेबिट साइड। क्या? हाँ, कैश अकाउंट के अंदर आई एम गेटिंग अ बैलेंस ऑन द डेबिट साइड, दैट इज 13,013। कैन आई राइट इट ओवर 13,000? फिर दूसरा अकाउंट कैपिटल है, क्रेडिट साइड पे। एम आई करेक्ट? यस। इफ आई राइट इट ओवर 10,000, am I correct if I write purchase का amount of 5,000 on the debit side? देन सेल्स का क्रेडिट। सेल्स का तो यहीं पे दिख रहा है मुझे, सेल्स अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड है, और यहाँ पे देखो टू बैलेंस आ रहा है, सॉरी बाय बाय बैलेंस, पेरेंट बैलेंस। और डाउन, बॉट तो डाउन आ रहा बाय बैलेंस जिस तरफ आएगा उसी साइड को। है। बॉट डाउन जहाँ पे आएगा ना, मतलब उसका वो बैलेंस है। अच्छा, ब्रॉड डाउन जाएगा। परफेक्ट है सर। मैजिक देखोगे आप यहाँ पे, योर डेबिट अमाउंट हो गया। is 18,000 and your credit amount is 18,000, and it has to tally because debit side is always equal to credit side, and हमारा अकाउंटिंग भी तो वही बोल रहा है। हम लोगों ने जर्नल के अंदर वही सिस्टम रखा है, लेजर के अंदर हम लोग ने वही सिस्टम रखा है, तो डेफिनेटली आगे भी वही कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। सो द डेबिट्स हैज टू बी इक्वल टू क्रेडिट्स। सर ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया ना आपके लिए, ये जो फॉर्मेट है, उसको पता है क्या बोलते हैं? इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस।
क्या बोलते हैं इसको? ट्रायल बैलेंस। And what do you mean by trial balance? It's a balance for a trial that is prepared to check if I have made any mistake in posting or journalizing. अगर मेरा ये अमाउंट में कुछ गड़बड़ होता, लेट्स से सौमिक बाई मिस्टेकली मैंने यहाँ पे 5 के पे 15 लिख दिया, तो फिर दिस अमाउंट विल बी 28. इज इट करेक्ट? मतलब अगर आपने कोई मैथमेटिकल एरर किया है या पोस्टिंग में कोई एरर किया है, वो आप फाइंड कर सकते हो व्हेन यू प्रिपेयर द क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस। यस, इसमें कितना ही है और कुछ बस खत्म, कुछ नहीं. सर ट्रायल बैलेंस वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, इसी के लिए तुम्हारे सिलेबस से निकाल दिया है. बट लेजर में दे हैव केप्ट इट, एक छोटा सा पार्ट. अर्लियर दे यूज्ड टू हैव अ सेपरेट चैप्टर एंड दे यूज्ड टू आस्क दिस चैप्टर फॉर 10 मार्क्स. हाँ, सब कैपिटल एक्सपेंसेस इनकम्स और वो सब बना दे देते आपको अमाउंट के साथ में. यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट गोज वेयर एंड देन आफ्टरवर्ड इसको प्रिपेयर करने का टेबल के अंदर. नहीं समझा? सो दैट इज द चैप्टर ऑफ दिस लेजर.